Good morning, student. Welcome you all to TSN online classes. So today we'll discuss the poem which is titled as Wind, and this poem is given in the chapter second, that is the sound of music. All right. So basically, this poem is originally written in Tamil language by the Subramanya Bharati, but this is translated into English language by A.K. Ramanujan. So basically, this poem is written by A.K. Ramanujan. So here the poet discusses about the wind, and he described the power of wind would be the poet says wind is destructive. All right, जो poet हमें यहाँ पे कह रहा है कि wind जो है वो क्या है, destructive है, and it's brought all the difficulties, challenges and circumstances in life. Alright, so the poet has linked the destructive power of wind to the adversities of life. It means to all the challenges, to all the problems and circumstances which we have faced in our life. Alright, so in this poem, basically the poet talks about the strong people or the weaker people. Okay, so basically क्या होता है, those who are not strong enough ना, उनके लिए जो डिफ़िकल्टीज होती हैं लाइफ में, जो चैलेंजेस होते हैं या जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं लाइफ में, उनको उनसे डील करना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है. बट द स्ट्रॉन्ग पीपल इमर्ज आउट मोर स्ट्रॉन्गर with these difficulties or circumstances. All right, so whenever we have challenges in our life, so those people who are strong enough, they come out more stronger and they overcome the adversities. But those people who are weak, so they cannot survive in the adverse situation and they become more weak. All right, so इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. जैसे वीट होता है और शेफ होता है, ठीक है. सो वीट इज जो वांटेड है, जो यूजफुल है फॉर अस, एंड द अदर थिंग इज शेफ, जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है. तो क्या करते हैं, जैसे घरों में या आपने किसी को देखा होगा, तो वो क्या करते हैं कि जब वीट को क्लीन कर रहे होते हैं तो कुछ इस तरीके से उसे साफ करते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ विंड क्या होता है, जो शेफ होता है, मीन शेफ अनवांटेड है, तो वो क्या होता है, विंड की हेल्प से वो उड़ जाता है, वो साइड हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, किससे, वीट से. तो हेयर यहाँ पे वीट क्या हो गई, यूजफुल थिंग हो गई, मीन स्ट्रॉन्ग पीपल हो गई. तो वो कहते हैं डिटरमिन्ड रहते हैं. जब विंड भी आती है तो वो डिटरमिन्ड रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं और वो कहीं नहीं जाते हैं. बट जो शेफ होते हैं वो क्या करते हैं, विंड जब आती है तो वो उसको ले नहीं पाते हैं और वो वीक होते हैं, जिसमें जो सेपरेट हो जाते हैं, किससे, वीट से. तो यहाँ पे यही है कि जो स्ट्रॉन्ग पीपल हैं वो कितनी भी लाइफ में डिफिकल्टीज आ जाए, सर्कमस्टेंसेज आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए, दे कैन डील विद इट एंड ओवरकम विद इट ऑल द एडवर्सिटीज. बट ऑन द अदर हैंड दोज हु आर वीक, वो उससे ओवरकम कर ही नहीं पाते हैं, बल्कि वो और ज़्यादा वीक हो जाते हैं. ऑल राइट, सो here the poet gives us a very beautiful message through the poem that we should mentally strong and physically tough in order to survive hardship of life. If we want to live in this life, so we have to more focus, determined, all right, and mentally strong. All right, so let us begin reading the poem. Let's see the explanation of the poem. So first we'll see the about the poet, कि poet कौन थे, क्या थे, right? Subramanyam Bharati 1882 to 1921 is a great Tamil poet famous for his patriotism in the pre-independence era. So वो किसके लिए फेमस थे, वो प्री इंडिपेंडेंस एरा में अपनी पेट्रियाटिज्म के लिए, देशभक्ति के लिए फीलिंग फेमस थे. ओके, एंड द सेकेंड, जिन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हमारे लिए ये पोएम, सो A.K. Ramanujan इज अ कन्नड़ एंड इंग्लिश पोएट. वो कन्नड़ और इंग्लिश पोएट मीन्स कन्नड़ लैंग्वेज में भी वो पोइट्रीज लिखते थे एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज.
So well known for his translation of classical and modern poetry. So वो famous थे classical और modern poetries को translate करने में, जैसे कि उन्होंने यहाँ पे सुब्रमण्यम भारती की जो तमिल poem है उसे translate करी in English language. All right, let us begin the reading of the poem. So the wind blows strongly and causes a lot of destruction. How can we make friend with it? So ये विंड है, वो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं जो विंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लो करती है, बहुत स्ट्रॉन्गली आती है विदाउट एनी इन्विटेशन, और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्ट करके जाती है, डिस्ट्रक्शन करके जाती है, डिस्ट्रक्टिव होती है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू. सो हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद इट? तो हम इसके फ्रेंड कैसे बनते हैं? लेट्स सी. Wind comes softly, don't break the shutter of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. There, look what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books. So, basically, in this stanza, poet says कि wind, please come gently, come softly, आराम से आओ. डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो. जो हमारे विंडोज हैं, उनके जो डोर्स हैं, उनको शटर मत करो. राइट, जब बहुत जोर से विंड आती है, देखा होगा जो हमारी विंडोज होती हैं वो अगर उस पर लैचेस नहीं होते तो वो खुल जाती हैं और जोर से आवाज करती हैं. तो यहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं विंड से कि कम जेंटली, कम सॉफ्टली एंड डोंट शटर आवर विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स. अब टेबल पर कोई पेपर रखा होगा तो उसको वो उड़ जाते हैं थ्रू द ब्लो ऑफ विंड. तो वो विंड को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि डोंट स्कैटर द पेपर ऑल्सो, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. अब शेल्फ में आपके अगर बुक्स रखी हैं तो वो वहाँ पे भी उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसको भी आप नीचे ना गिराएं. देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. यहाँ पे जो पोएट है ही वाज टू मच एंग्री टू द विंड कि अब तो देखो तुमने क्या कर दिया. व्हाट यू डिड, आप तुमने ये सारा काम कर दिया. मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डोंट डू दिस मीन्स कम्स जेंटली, कम सॉफ्टली, डोंट शटर द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर एंड डोंट थ्रो द ऑल द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ, बट स्टिल यू डिड ऑल दीज थिंग्स. मेरे मना करने पे और रिक्वेस्ट करने पे भी तुमने सारी चीजें करी हैं. यू tore the pages of the books. Tore means tear the pages. Tore is the past tense of tear. Tear मतलब फाड़ना. तुमने जो बुक्स के जो पेजेस हैं, इतनी तेज विंड आई थी कि जो पेजेस हैं वो भी क्या हो गए, टेयर हो गए. सो यहाँ पे जो पोएट है, ये तो होगा लिटरल मीनिंग. सो यहाँ पे मीनिंग क्या है, मैसेज क्या दे रहे हैं पोएट कि जो वीकर पीपल हैं, जब वो विंड उनकी लाइफ में आती, मीन्स डिफिकल्टीज, चैलेंजेस उनकी लाइफ में आते हैं, तो बिना किसी, आपको कोई इनविटेशन तो देते नहीं है कि हाँ चलो आ जाओ, अब आप आ सकते हो हमारी लाइफ में, है ना, हाँ वी कैन डील विद इट, हाँ नाउ वी आर रेडी, ऐसा तो नहीं होता. तो क्या होता है, विंड से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या वीकर पीपल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में विदाउट इन्विटेशन मत आओ, विद इन्विटेशन आओ, अगर आना ही है तो, जिससे हम रेडी हो जाएं. राइट. तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि वीकर पीपल की लाइफ में आते हैं और उनकी लाइफ को पूरा डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, शैटर्ड कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, इनकी लाइफ को बिखेर देते हैं. ऑलराइट. सो यहाँ पे पोएट बस यही बताना चाह रहे हैं कि वीकर पीपल के साथ कैसे होता है जब विंड आती है तो. ऑलराइट, सी द नेक्स्ट स्टैंजा. यू ब्रॉट रेन अगेन, यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग fun at weaklings. तो यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि you brought rain again, तुम वापस बारिश को लेकर आ गई हो. राइट. एंड you are very much clever, you are clever enough. ठीक है. सो यहाँ पे poking fun means making fun of. सो किसका तुम हमारा मजाक बना रही हो? weaklings. weaklings means the person who is weak. आप ये जो येलो बॉक्स है, आप इसमें सारे मीनिंग्स देख सकते हैं. A person who is weak means those person who is weak. आप उनका मजाक उड़ा रहे हो क्योंकि आप वापस रेन को लेकर आ गए हो. Frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. So let us first see what is the meaning of crumbling. Crumbling means falling or to cause something
to break and the frill means weak and delicate. So यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी person weak और delicate होता है उसके साथ आप क्या करो, मीन्स विंड क्या कर रही है, विंड डिड क्रम्बलिंग देयर हाउसेस, मीन्स उनके हाउसेस को ब्रेक कर रही है, जोर से विंड आती है तो उनके हाउसेस जो होते हैं, उनके होम जो है वो टूट जाते हैं, क्रम्बलिंग डोर्स क्रम्ब हो जाते हैं, रैफ्टर्स, तो हियर द मीनिंग, रैफ्टर का मीनिंग क्या है, स्लोपिंग बीम्स सपोर्टिंग अ रूफ. सो सॉर्ट ऑफ कुछ इस तरह के आपने देखा होगा जब जहाँ पे बारिश ज़्यादा आती है तो वहाँ कुछ इस तरह की रूफ बनी हुई होती है, ठीक है. तो ये स्लोपिंग और ये बीम पे सपोर्ट पे खड़ी रहती है, बीम के सपोर्ट पे होता है इनके. तो ये कह रहे हैं कि इनको भी क्रम करके जाती है. क्रम्बलिंग वुड, जो भी वुड्स हैं उनको क्रम्बलिंग करके जाती है. क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स मीन्स जो भी हमारी बॉडीज, हम लोग हैं जो लाइव पीपल हैं उनको भी क्रम्बलिंग करती जाती है. एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स, हार्ट को भी मीन्स टोटली यहाँ पे पोएट ये डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं. पोएट सेज कि यहाँ पे इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के साथ जो भी लाइव ऑब्जेक्ट हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, उनको भी आप डिस्ट्रक्ट करके जा रहे हो. द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम. सो यहाँ पे किससे पोएट किसकी बात कर रहे हैं, विंड गॉड. विंड को किस से कंपेयर कर रहे हैं, गॉड से. वो क्या कह रहे हैं कि जो विंड गॉड है विनोज, सो विनोज मीन्स, अभी मैंने आपको कुछ एक एग्जाम्पल भी किया था, ब्लो ग्रेन फ्री ऑफ शैफ सेपरेट फ्रॉम हस्क बाय ब्लोइंग ऑन इट. मतलब वही जो वीट होता है, जो ग्रेन होती है, जो उसको शेफ से अलग कर देते हैं, राइट. तो जो शेफ अलग हो जाता है और ग्रेन अलग हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, विनोज कहते हैं. एंड क्रशेस देम ऑल. तो क्या कह रहे हैं कि जो विंड है वो स्ट्रॉन्ग पीपल को तो अलग कर देती है और जो वीकर पीपल हैं उनको क्रश कर देती है, उनको सेपरेट कर देती है, राइट, हटा देती है. जैसे किसी अनवांटेड चीज को, जैसे अनवांटेड शेफ अनवांटेड होता है फॉर अस, तो हम उसको हटा देते हैं, वैसे ही वो उसको भी हटा देती है. ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम. सो हियर जो भी पोएट ने उन्हें कहा था वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो विंड कुछ भी नहीं कर रही है. विंड क्यों करेगी, ऐसा थोड़ी ना. जैसे मैं आपको बताया था कि बिना इन्विटेशन के आती है. जो भी तो हमारी लाइफ में जितनी भी डिफिकल्टीज और सर्कमस्टेंसेस हमारी लाइफ में आते हैं वो कभी भी इन्विटेशन देकर तो नहीं आते, वो आ जाते हैं, बट वी हैव टू फेस और वी हैव टू डील विद इट, राइट, इन एनी सर्कमस्टेंसेस, एनी हाउ और एनी केस, राइट. सो यहाँ पे प्रोबेबली यही कहा जा रहा है कि जो भी वीकर पीपल है वो और वीकर हो जाते हैं और जो स्ट्रॉन्गर पीपल हैं वो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, राइट. सो डील विद द सिचुएशन. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. 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 Here the meaning steadfast means firm. Okay. Do this, and the wind will be friend with us. So यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अब हमें क्या करना है. So हमको ही खुद को स्ट्रांग होना पड़ेगा. तो अगर विंड हमारी बात नहीं सुन रही है, सो कम लेट अस बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम. सो हम क्या बनाने चाहिए, हमको स्ट्रॉन्ग होम बनाने चाहिए जिससे हमारा जो विंड के टाइम पे हमारे होम जो है डिस्ट्रक्टिव नहीं हो, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाए, रिन्यूड नहीं हो जाए, रूइंड नहीं हो जाए. लेट्स जॉइन द डोर्स फैमिली. टाइटली क्लोज को डोर को क्लोज करना चाहिए. प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी. हमें खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए इन ऑल द डिफिकल्टीज एंड circumstances. Make the heart steadfast. Firm रहना चाहिए, हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए. किसी भी सिचुएशन से आपको फ्राइटन, डरना नहीं चाहिए, राइट. Do this and the wind will be friend with us. If you do all these things, then you will see the wind will be friend with us. तो wind क्या हो जाएगी, हमारी फ्रेंड बन जाएगी. So basically यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि you can work on yourself. अगर तुम अपने आप पे काम कर लोगे और ये बोलोगे yes I can do it, I will, और I will be always optimistic. So ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, easy हो जाएगी. Then you will be able to face all the difficulties or problems in your life. So ये चीज करना बहुत जरूरी है. पोएट इसलिए कह रहे हैं कि खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर दो, इतना फर्म कर दो
स्टेडफास्ट कर दो कि कोई भी विन या मीन कोई भी डिफिकल्टीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाए, हार्म नहीं कर पाए, राइट? तो आप सबके लिए, सारी एडवर्सिटीज के लिए रेडी हो. सो इफ यू वांट टू मूव फर्दर इन योर लाइफ और इफ यू वांट टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल, सो आपको ये सारी चीजें करनी ही पड़ेंगी, राइट? मस्ट है. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. Flourish means grow करना. So wind क्या करती है? Weak fires. जब suppose weak fires यहाँ पे weak people से ही है, right? और strong fires का मतलब यहाँ पे strong people से है, right? तो here compare कर रहे हैं weak fires को with the weak person और strong fires को strong person से. राइट? सो एक एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आप इजीली कनेक्ट कर पाओगे और आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कैसे पोएट क्या कन्वे करना चाह रहे हैं. तो यहाँ पे अगर कहीं जगह आग लग रही है, ठीक है, किसी भी जगह पे आप समझ लो फायर है वहाँ पे, तो वहाँ पे अगर तेज विंड होती है तो क्या हो जाती है, उसको बुझा देती है, राइट? सिमिलरली जो वीक पीपल होते हैं, अगर उनकी लाइफ में डिफिकल्टीज आ जाती है तो क्या होता है, वो वहीं पे बैठ जाते हैं, वो कुछ नहीं कर, होपलेस हो जाते हैं. बट ऑन द अदर हैंड विल सी कि जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती है, जो बड़ी आग लगी होती है, सपोज जंगल में आग लगी रहती है, तो वो क्या करते हैं, अगर वहां पे तेज हवा आती है तो वो और फ्लरिश करती है और ग्रो करती है. मीन्स पूरे जो जंगल है उसमें रॉर करेगी, वो फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी. सो सिमिलरली जो स्ट्रॉन्ग पीपल हैं वो भी क्या करते हैं, जितनी भी उनकी लाइफ में डिफिकल्टीज और सर्कमस्टेंसेस आ रहे हैं, एडवर्सिटीज हैं, उनको वो फेस करते हैं और वो और ग्रो करते हैं. ऑलराइट, सो his friendship is good, we praise him every day. सो बेसिकली इसकी जो फ्रेंडशिप है वो अच्छी है और वो रोज हमें क्या करती है, अगर वो हमारे लिए अच्छी है, अगर हम उसके फ्रेंड बन जाते हैं, मीन्स विंड के फ्रेंड बन जाते हैं, तो वो हमारे लिए प्रेज करेगी. लाइक अगर हम रेडी हैं और हम ये डिटरमिन्ड हो जाएं और स्ट्रॉन्ग इनफ हो जाएं कि नहीं, हमारी लाइफ में कुछ भी हो जाए, कोई भी डिफिकल्टीज हो जाए, सर्कमस्टेंसेस आ जाएं, प्रॉब्लम्स आ जाएं, हम वी कैन डील विद इट, हम उससे डील कर ही लेंगे एनी हाउ. तो क्या होगा, अगर हम किसी चीज़ को पॉजिटिवली सोचेंगे और कितना भी विंड रूट साउंड करे या कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए, हम उनको फेस कर लेंगे. अगर हम इतने डिटरमिन्ड हो जाते हैं तो वही चीज़ हमारे लिए डेली क्या करेगी, प्रेस करेगी. ऑलराइट, सो विद दिस वी कम टू एन एंड विद आवर पोएम. सो आई होप कि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी किया है. सो यहाँ पे आप देखिए, इट्स रिटन बाय सुब्रमण्यम भारती, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द तमिल बाय A.K. रामानुजन. सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू.